Namaste parents and my dear students. I Rita Kapoor welcome you in RED online classes. Today we are going to study about block 10, that is comparing folktales, and our today's topic is pronouns. Before starting the class, we need some resources that are content book, workbook and notebook. And our today's keywords are pronoun, singular and plural. So I would like to ask some questions from you. Can you tell me a common noun? Okay, boy is a common noun. Now, can you give me a proper noun? Think about it. Oh yes, Rohan is a proper noun. Both are same but difference is that is general and it is specifically. Now I am going to write few sentences on the board, so please look it carefully. Rohan likes to play ball. Rohan likes to play ball. Rohan likes to play ball. Rohan plays cricket well. Rohan likes to paint too. Rohan is a good student as well. So you can see something strange in that. Can you tell me what is it? What is unusual in these sentences? Yes, Rohan is repeated again and again. रोहन को बार बार रिपीट किया गया है. देखिए रोहन 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 then again. So it is looking something strange. ये थोड़ा अजीब लग रहा है, बार बार हम रोहन का नाम ले रहे हैं. So we can make it something better. How can we make it? It seems us better. Yes, we can use pronouns in place of Rohan. That is our today's topic. We are going to learn about pronouns. And our aim is we will identify and use singular and plural pronouns. Now open your content book, page number 2. You can see the race. You have to read the complete lesson, and what you need to do while reading, you will underline pronouns. See, Hira Hare and Tutu Tortoise were neighbors. They even went to the same school. So I have underlined they. They is a pronoun. Tutu was friendly and helpful. He always had a smile on its face and everyone liked him. I have underlined he, and him is also pronoun. So what you need to do, you have to read this lesson and underline all the pronouns. So pause the video and read the lesson and underline the pronouns. After that I will ask from you. Have you underlined the pronouns? So which pronouns did you find? Okay, let's discuss. Pronouns they, he, I, you, it, him. These pronouns you have underlined. So these pronouns were there in the story. Can you add some missing pronouns in this list? Okay, so that is we, us, she, her, them,
शब्दों का प्रयोग हम नाउन की जगह करते हैं वो प्रोनाउन है। तो जहाँ पर्सन एक हो, प्लेस एक हो और थिंग एक हो, वहाँ यूज होने वाले प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन में आएंगे। जैसे कि आई, यू, he, she, it। ये सभी प्रोनाउंस या तो किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किए जाएंगे, या किसी एक प्लेस के लिए, या किसी एक थिंग के लिए, वस्तु के लिए यूज किए जाएंगे। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। नाउ कम टू द प्लूरल प्रोनाउन। अब प्लूरल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जैसे हमने इसको सिंगुलर नाउन की जगह यूज किया, तो यहाँ पर जब एक नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, एक से ज़्यादा प्लेस हो, एक से ज़्यादा वस्तुएं हो, तो उनके लिए जो शब्द यूज किए जाएंगे हम उनको प्लूरल प्रोनाउन में रखेंगे। जैसे कि वी, दे, इनका प्रयोग हम प्लूरल प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और प्रोनाउन की कुछ और भी कैटेगरीज होती हैं कि सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म होती हैं। वो आप नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट क्लास पे और नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शी एंड हर, he and him, they and them, we and us. Think about it, then we will discuss. Okay, in last grammar class you have learnt about subject and predicate, naming part and telling part. So have you remembered something? Let's discuss. See on the board. Naming part, जिसको कि हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। टेलिंग पार्ट, जिसको कि हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। नेमिंग पार्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट, और टेलिंग पार्ट में जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑन इट, सो लुक इट वेरी केयरफुली। देखिए, I is a naming part, that is a subject, and me is a telling part. Me हमेशा predicate वाले पार्ट में आता है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में me कभी यूज नहीं होगा। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म I और ऑब्जेक्टिव फॉर्म me होगी। नेक्स्ट वी कम टू द we. He is the naming part, subjective form, and us is telling part. This is its objective form. Next come to you. You make telling part and naming part both are same. You के naming part और telling part दोनों सेम रहते हैं। Next, we come to the he. He is the naming part and him is the telling part. इसी तरह से आगे देखेंगे।
she. She is the naming part. Her is the telling part. And now come to the next word, that is it. It दोनों में सेम रहता है. और they is the naming part. ये subjective form है और objective form होगी then. Here now come to the next part. We have completed this naming part and telling part, and we look one more thing. We I and we, इनको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू को सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट और दे ये सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं. क्लियर? नाउ लुक एट द बोर्ड and read. I have written some sentences. It is a nice activity. I like it. You know me. I know you. अब इसे ध्यान से देखिए. देखिए it is a pronoun और कहाँ यूज हुआ है? सब्जेक्ट में. जैसे कि हम नेमिंग पार्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आई लाइक इट. यहां पर इट कहां यूज हो रहा है? टेलिंग पार्ट में, यानी कि प्रेडिकेट. जैसा कि आपने ग्रामर की क्लासेस में पढ़ा भी था कि सेंटेंसेस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, नेमिंग पार्ट, टेलिंग पार्ट. और जहां से वर्ब शुरू होती है हमारा टेलिंग पार्ट शुरू हो जाता है. तो दीज आर टेलिंग पार्ट्स एंड दीज आर नेमिंग पार्ट. और आपने ये भी देखा था कि नेमिंग पार्ट में या तो नाउन या फिर प्रोनाउन हो. अब अंतर देखेंगे. देखिए इट सब्जेक्ट में भी आ रहा है, इट ऑब्जेक्ट में भी आ रहा है, यानी कि दोनों जगह ये सेम है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी कि इट सब्जेक्ट में भी यूज होता है और इट ऑब्जेक्ट में भी. इसकी दोनों फॉर्म सेम रहती है, नेमिंग पार्ट की भी और टेलिंग पार्ट की भी. नाउ कम टू दिस पार्ट, यू नो मी. अब देखिए यू इज सब्जेक्ट और मी इज ऑब्जेक्ट. अब देखिए मैं यहां पर मी में आई यूज नहीं कर सकती. यू नो आई, आई इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म. आई का प्रयोग हम नेमिंग पार्ट में करेंगे, टेलिंग पार्ट में नहीं करेंगे. और मी का प्रयोग हम टेलिंग पार्ट में ही करेंगे, नेमिंग में नहीं करेंगे. जैसे आई एम रीटा, तो मैं ये नहीं कह सकती मी इज रीटा. दैट इज रॉन्ग. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो यू. अब देखिए यहाँ यू कैसे यूज हुआ? सब्जेक्ट में. और यहाँ यूज कैसे हुआ? ऑब्जेक्ट में. जैसे कि इट की दोनों फॉर्म सेम होती है, इसी तरह से यू की भी दोनों फॉर्म सेम रहती है. चाहे वो सब्जेक्ट में यूज हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट में यूज हो, दोनों जगह वो सेम रहेगा. गॉट इट? नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट्स. Can you make a sentence that has pronoun both in the subject and predicate? आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें सब्जेक्ट में भी और प्रेडिकेट में भी दोनों में प्रोनाउन का यूज हुआ. तो यूज करिए, माइंड को फटाफट से बनाइए. नाउ सी, यू gave it to me. You subject, this is predicate part, it and me. तो देखिए सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन यूज हुआ और प्रेडिकेट में भी यूज हुआ, नेमिंग पार्ट में भी और टेलिंग पार्ट में भी. तो इट्स टाइम
टाइम फॉर समराइजेशन व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने क्या सीखा है, क्विकली रिवाइज करते हैं। आज हमने सीखा प्रोनाउंस के बारे में, और प्रोनाउन के बारे में भी क्या सीखा, हमने प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया। कैसे किया, हमने बुक रीड की, उसमें प्रोनाउंस को अंडरलाइन किया, और हमने क्या किया, उनको यूज किया। कैसे कि हाउ टू यूज इन अ सिंगुलर मैनर एंड इन अ प्लूरल मैनर। प्लूरल और सिंगुलर में अलग अलग प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, ये हमने आज सारा सीखा। और एक टेबल भी बनाई जिसमें आपने सीखा कि सब्जेक्ट में कौन सी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट में कौन सी फॉर्म होती है, नेमिंग पार्ट में कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, और टेलिंग पार्ट में हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन से प्रोनाउंस नेमिंग और टेलिंग पार्ट में दोनों में यूज होते हैं, जैसे कि इट, यू, हमने भी सीखा। और सेंटेंसेस में किस तरह से प्रोनाउन, एक से ज़्यादा प्रोनाउन को हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। Now open page number 10 of your worksheet, that is pronouns. Read question 1. Match the nouns with the correct pronouns. आपको क्या करना है, इन नाउन्स को करेक्ट प्रोनाउन के साथ मिलाना है। सोनाली लड़की है, शी के साथ मिला देंगे। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस को करेंगे। सेकेंड देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस फॉर द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। आपको देखिए ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, तो आपने उनके लिए प्रोनाउन का यूज करना है और फिल करना है। टीना वेंट टू अ स्टेडियम। अब टीना, टीना के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, शी। कि हम टीना को रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ शी कर देंगे। ऐसे ही बाकी के सेंटेंसेस में आप फिल करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. गिव इमेजिनरी नेम्स टू द पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स इन द पिक्चर. डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग प्रोनाउंस. अंडरलाइन द प्रोनाउंस. आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आपने अब सोच लेना इनके नाम क्या हो सकते हैं, ये कौन सी जगह हो सकती है, और उसको, उन नामों को यूज़ करके आप कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रोनाउन भी यूज़ करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, प्रोनाउंस को अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन. नाउ ओपन योर कंटेंट बुक. ओपन पेज नंबर 11 of your content book. Read question number 6. You have to do question number 6. Rewrite the passage after replacing the nouns with pronouns. तो आपको क्या करना है, ये पैसेज लिखा हुआ है, आपको इसे दोबारा लिखना है। आपको क्या करना है, जो नाउन जहाँ यूज़ किए गए हैं उनकी जगह आपको प्रोनाउन यूज़ करनी है। राम इज़ अ टॉल मैन। अब राम नाउन है, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ टॉल मैन। एंड रानी इज़ अ शॉर्ट लेडी। रानी क्या है, रानी लड़की है, तो हम उसकी जगह यूज़ करेंगे शी इज़ अ शॉर्ट लेडी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ को आप दोबारा अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक।